Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 50, second year mathematics, chapter number 7, vectors, and we are discussing the scalar triple product. And today's learning outcomes are the students will be able to prove that I dot j cross k, or j dot k cross I, or k dot I cross j is equal to 1, and also I dot k cross j is equal to j dot I cross k is equal to k dot j cross I is equal to minus 1. And also they will be able to find the work done by a constant force in moving an object along a given vector, and also they will be able to discuss application of vectors in engineering and physics. So these are the learning outcomes, and now we will start today's lecture. And today's question is, what is the condition for coplanar vectors, or you can say what is the condition for coplanarity of vectors, कि आपके पास जो vectors होते हैं वो कब coplanar होते हैं, तो उसकी क्या condition है. So coplanar vectors, if two or more vectors lie in the same plane, as we discussed in our previous lecture, that the vectors which are lying in the same plane are coplanar vectors. Here A, B, C lie in the same plane, so these are coplanar vectors. This is a definition of coplanar vectors, and it also be noted that two vectors are always coplanars. If there are two vectors, then they are always coplanars. And the proper condition for coplanarity is that we have discussed in the last lecture, that if the scalar triple product of the three vectors is equal to 0, if u cross v dot w or u dot v cross w is equal to 0, then you can say that the given three vectors are coplanars. So vectors parallel to the same plane or lie in the same plane are called coplanar. This is another definition of coplanar vectors. You can see in the given figure that these two vectors are coplanar, but these two vectors, they are outside this plane, so they are not coplanar. So this is the condition for coplanar vectors, as we discussed in our previous lecture. Now today we will discuss some applications, or you can say that the use of vectors in engineering and other fields. And one of the most important example is the work done by a constant force. So what is the work done? The work done is equal to W, and you can calculate the work done by the force into the displacement along the direction of the force. Okay, so you will take the component of force in the direction of the डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो रही थी जिस डायरेक्शन में, वो आप फोर्स का वो कंपोनेंट लेते हैं. तो बेसिकली एफ डॉट डी होता है. तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट्स बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो यू कैन से एफ डी कॉस ऑफ थीटा. सो यहाँ से आपके पास क्या होता है, ये वर्क डन आपके पास जो है कैलकुलेट होती है. और हेयर you can say the force is constant, जो आप force apply कर रहे थे वो constant होती है. So this is one of the basically application of vectors in physics. So again, now we are discussing some of the applications of the vectors in physics or engineering. And the first is work done, and we will also discuss some other example also in our next lectures. So work done is if a constant force F applied to a body. You can see in the figure that this is a body, and you can apply a force F here. So acts on a body at an angle theta, and this is an angle theta which the force is making with the body and to the direction of motion. Then the work done by F. So the work done by this force F is defined to be the product of the component of the force. So you will take the component of force which is in the direction of displacement. So direction of displacement is this. आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, तो फोर्स का कंपोनेंट वो कौन सा कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में है. सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज एफ कॉस थीटा. तो आपके पास ये वाला कंपोनेंट लेंगे फोर्स का, जो कि उस डायरेक्शन के अलोंग जो आपके पास है, एंड द डिस्टेंस दैट द बॉडी मूव्स. और वो जो डिस्टेंस जो है आपके पास, जो बॉडी यहाँ से लेके डिस्प्लेस हुई है यहाँ तक, तो वो जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, जो फासला लिया है, वो आप लेंगे. तो यहाँ देख सकते हैं जो आपके पास डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास ए बी है. ये नीचे आपके पास गिवन है, दिस इज द ए बी, द बॉडी जो डिस्प्लेस हुई है यहाँ ए पोजीशन से बी तक, तो ये आपके पास ए बी डिस्टेंस है जो डी है. तो बेसिकली क्या है आपके पास, द वर्क डन इज component of force along AB and this and into displacement. So this is F cos theta. ये आप देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में F का जो
कंपोनेंट है वो बेसिकली एफ कॉस थीटा और ए बी क्या है जो डिस्टेंस है और जो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर आप ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे और एफ कॉस थीटा बेसिकली ये क्या है डॉट प्रोडक्ट है एफ इन डॉट ए बी। तो बेसिकली आप जब फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास क्या आता है वर्क डन आ जाता है। तो इस तरह आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं और ये आपके पास एक एप्लीकेशन है वेक्टर्स की। तो ये जो हमने अभी डिस्कस की एप्लीकेशन वर्क डन और साथ में हमने कुछ और चीज़ें डिस्कस की थी उनको अप्लाई करने जा रहे हैं इन अवर एक्सरसाइज 7.5 नाउ टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 एंड 9। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 उसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ 2i मल्टीप्लाई बाय 2j j dot k। okay, so इसकी वैल्यू फाइंड करनी what is the result of this and secondly we will also find the value of 3j dot k cross I। okay, and now thirdly हमने ये फाइंड करना है k ij। ये आपके पास क्या है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा है। हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका फाइंड करना है ना। आल्सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने आई और के। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो आपके पास सेम वेक्टर्स है तो आपको मालूम होगा हमने कहा था कि जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप फाइंड करते हैं और वेक्टर दो सेम हो जाते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होता है जीरो। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी तो वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आपके पास फाइंड द वर्क डन फाइंड करना है। अगेन 8 में भी फाइंड द वर्क डन और 9 में भी आपने वर्क डन फाइंड करना है। सो आपके पास वर्क डन और जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट है उसको यूज करते हुए हमने क्वेश्चंस करने। तो ये आज का टारगेट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो है फर्स्ट है 2i मल्टीप्लाई बाय 2j डॉट के। तो फर्स्ट j डॉट के हम तो आपको पता है बेटा कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और आपने देखा है कि डॉट प्रोडक्ट में ये देखें आपके सामने मैंने ये साइड पे लिखा हुआ कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के हमेशा ये वन के होते हैं बिकॉज यू नो जब वेक्टर्स आपस में आई डॉट आई सेम आपके पास जो होते हैं एंगल जीरो होता है इनका तो कॉस और 0 1 होता है तो ये आपका रिजल्ट ये होता है। सिमिलरली आपके पास अगर आई डॉट जे आएगा आपके पास और या आई डॉट जे डॉट के आएगा तो ये सारे जो बाकी जो आपके पास डिफरेंट जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होता है। ये भी हमने देखा हुआ ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से देखें तो आई साइक्लिंग में आप अगर मूव करें तो आपके पास आई के बाद जे है जे के बाद के है तो आई और जे को जब आप करेंगे तो आपके पास के रिजल्ट आएगा। ठीक है, जब जे और के को क्रॉस करेंगे तो आई आएगा। तो ये आपके पास एक जो है एक सीक्वेंस में आप मूव कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आई से जे से के तब तो आपके पास पॉजिटिव जो है वो वैल्यूज आएंगे। लेकिन अगर आप आई से के की तरफ जाएंगे मतलब कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी तो आपके पास जे ही वेक्टर आएगा लेकिन सारा ऑपोजिट आएगा। इस तरह जे से जब आई की तरफ आएंगे आप ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आपका माइनस के आएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं ये वो रिजल्ट्स हैं जो हम पहले वेरीफाई कर चुके हैं। इन रिजल्ट्स को मैं यूज करना है और यहाँ से गिवन जो आपके पास वेक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लेना है। तो आप देख सकते हैं 2 और 2 आपके पास मल्टीप्लाई हो गया, ये आपके पास 4 आ गया और आई और जे का क्रॉस लेना है। तो आई क्रॉस जे आपको पता है आई क्रॉस जे जो है वो के होता है। तो आपके पास ये क्या आ गया 4k आपके पास आंसर आ गया। आफ्टर सॉल्विंग दीज टू यू विल गेट 4k और आपके पास के पहले ही मौजूद है लास्ट में तो के डॉट के और आपको पता है के डॉट के क्या होता है आपके पास सेम आपके पास यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो ये के डॉट के 1 आ गया तो 4 इंटू 1 आपके पास आंसर 4 आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर 4 है। सेकंड देखें आपके पास है 3j डॉट के इंटू के क्रॉस आई। तो फर्स्ट आप देखें कि के क्रॉस आई जो आपके पास अगेन के क्रॉस आई आप के से आई की तरफ जा रहे हैं साइक्लिक ऑर्डर में जो मूव कर रहे हैं क्या क्लॉकवाइज मूव करके आप देख रहे हैं तो आपके पास जे आंसर आएगा। तो आपके पास ये के क्रॉस आई का आंसर जे आ गया। अब आपके पास क्या है जे डॉट जे और जे डॉट जे का आंसर आपको पता है 1 होता है तो आपका आंसर 1 यहाँ लिखा 3 1 3 तो सेकंड का आंसर आपके पास 3 आ गया आफ्टर सॉल्विंग। और ये आपके पास क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आपने यूज करते हुए फाइंड किया। अब आप देख रहे हैं के आई और जे माने कि के आपके पास यूनिट वेक्टर है उसके बाद आई है और ये जे और ये प्रॉपर जो आपके पास एक साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ है जिसको हमने बेसिकली सॉल्व करना। तो इसको पता है आपके पास ये क्या फॉर्मूला होता है के और आपके पास फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड और थर्ड का क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे बेसिकली क्या है बेटा आई क्रॉस जे हमारे पास के है तो हमारे पास साथ के डॉट के आ गया सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपके पास आंसर क्या आ गया 1। तो आपके पास के आई और जे का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपके पास 1 है क्योंकि आपको पता है कि तीनों के जो आपके पास जो आपके पास वैल्यूज हैं तीनों की
या तीनों का मैग्नीट्यूड आप कह सकते हैं के आई या जे, तीनों यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सिमिलरली अब आपके पास दो यूनिट वेक्टर सेम है, यहाँ पे आई और साथ में के है, तो इनका आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो यहाँ से हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। मतलब इसको हम इवेल्युएट ना करें तो हमें एक प्रॉपर्टी पड़ी थी कि जब दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो उनका हमेशा स्केलर प्रोडक्ट जो आपके पास ट्रिपल प्रोडक्ट वो जीरो आता है। लेकिन अगर आप उसको सॉल्व करना चाहें तो आप देखें आई डॉट आई, तो आई क्रॉस के, तो आपके पास ये आई क्रॉस के बेसिकली क्या आता है आपके पास, आई क्रॉस के आपको पता है जो, तो यहाँ पे आप मूव करें आई से के की तरफ तो आई क्रॉस के माइनस जे आएगा आपके पास, तो यहाँ आपने माइनस जे लिखा। अब आई डॉट माइनस जे या जो भी यहाँ वैल्यू होती, और यहाँ पे दो डिफरेंट आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो के बराबर आता है, तो ये देख सकते हैं आप रिजल्ट जो आपके पास वो जीरो है। तो यहाँ से आपने ये जो है फोर्थ पार्ट ही प्रूव कर दिया। अब इसका जो बी पार्ट है, ये आप कह सकते हैं इसका जो फिफ्थ पार्ट है, उसमें आपने प्रूव करना है यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू प्लस डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी। लेकिन ये तीनों चीज़ें जो हमने कहा था कि ये तीनों जो आपके पास जो टाइप्स होती हैं, तीनों डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं या इक्वल्स होती हैं, उन तीनों का सम जो है वो 3u.v क्रॉस डब्ल्यू, मतलब कि वो 3 टाइम्स है। बेसिकली ये फर्स्ट पार्ट जो हमने लिखा हुआ है इसके 3 टाइम्स के इक्वल है। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि कैसे आपके पास ये दोनों चीज़ें इक्वल है। हमने क्या किया, पहले आपके पास u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू ये हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, तो आपको पता है u लेट करो, आपके पास u वेक्टर जो है वो a1i प्लस b1j प्लस c1k, और सेकंड वेक्टर a2i प्लस b2j प्लस c2k, और थर्ड वेक्टर a3i प्लस b3j प्लस c3k। तीनों के आपने जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखे, तो ये आपके पास जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। तो अगर आप इसको इंटरचेंज करें रो 1 और रो 2 को, तो बाय इंटरचेंजिंग इनटू r1 एंड r2 आपके पास बाहर माइनस का साइन आता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, कि जब आप रोज को या कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो बाहर माइनस आता है, वन टाइम चेंज करें। अगेन फिर आपने फिर चेंज किया, रो 2 को रो 3 पे ले गए और आपके पास अगेन इंटरचेंज से अगेन माइनस माइनस जो है बाहर आ गया, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। अब आप ये देख रहे हैं ये क्या है आपके पास a2 b2 और c2 पहली रो, ये वेक्टर v बन गया आपके पास। ओके, ये वेक्टर v बन गया आपके पास, और इसी तरह ये जो आपके पास है सेकंड रो, ये w का वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और थर्ड वेक्टर u को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया v डॉट w क्रॉस u। मतलब कि आपने इससे स्टार्ट किया और आपने ये चीज इक्वल कर दी कि दोनों चीजें इक्वल है। सिमिलरली मतलब कि हम यहाँ जो ये लिखा हुआ है या जहाँ पे आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है v डॉट w क्रॉस u, आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ये चीज, क्योंकि दोनों मैंने इक्वल कर दी है, तो इसकी जगह भी मैं अगेन ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो आपके पास ये पहली चीज भी यही है और सेकंड भी अगेन ये लिख सकता हूँ, तो दोनों चीजें ये 2 टाइम्स हो गई। ओके, अब हम थर्ड जो है हम क्या करेंगे, इसको भी हम w डॉट वी क्रॉस यू क्रॉस वी को भी हम प्रूव कर देंगे, वो भी इसके इक्वल है। तो हम इन दोनों वैल्यूज की जगह ये सेकंड और थर्ड की वैल्यू की जगह हम जब ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल करके, तो वो हम जब ऐड करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स के। तो ये बेसिकली हमारा टारगेट है। तो नेक्स्ट में देखें आपके पास हमने क्या किया है, सिमिलरली भी कर सकते हैं, आप खुद भी प्रूव कर सकते हैं कि v डॉट w क्रॉस u जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, u डॉट v क्रॉस, और ये चीज किसके इक्वल है, ये v डॉट w क्रॉस u के। तो आप क्या कर सकते हैं, तो w डॉट u क्रॉस v बेसिकली वो भी इक्वल हो जाएगा अगर आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। आपको आइडिया है कि w डॉट u क्रॉस v वो आपके पास u डॉट v क्रॉस के w है। तो आपके पास ये जो चीज है आपके पास ये तीनों चीजें इक्वल है, तो जहां भी आपके पास ये v डॉट w क्रॉस u लिखा हुआ है या यहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है w डॉट u क्रॉस v, उसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं u डॉट v क्रॉस w को, मतलब कि ये वैल्यू लिख सकते हैं, वो तीनों चीजें जो इक्वल है। तो मैंने क्या किया है, उन दोनों की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दी है, मतलब कि यहाँ पे v डॉट w क्रॉस u की जगह भी ये वैल्यू लिख दी है और w डॉट u क्रॉस v की जगह भी मैंने ये वैल्यू लिख दी है। तो आफ्टर पुटिंग यू विल गेट दिस, तो आपके पास ये तीनों वैल्यूज सेम है और ऐड हो रही है, तो इसका मतलब है आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स u डॉट v क्रॉस w, और यही हमने प्रूफ करना था, यही राइट हैंड साइड, तो आपने प्रूफ कर दिया। तो बेसिकली वो जो प्रॉपर्टी थी आपने प्रूफ की थी फर्स्ट, उसी को आपने यूज किया कि ये तीनों जो आपके पास कॉम्बिनेशन है सेम है, तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, इक्वल का साइन है। तो बेसिकली हमारा रिजल्ट था ये चाहिए था u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, तो मैंने ये दोनों वैल्यूज थी आपके पास, इनको रिप्लेस कर दिया u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू से, यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दी इनकी जगह, तो उसको सॉल्व किया तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमने कुछ पार्ट्स प्रूव करने थे।
अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपने फाइंड द वर्क डन, जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी कि वेक्टर्स की एप्लीकेशन है वर्क डन, तो ये हमें वर्क डन फाइंड करना है। द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स, एक फोर्स दे दिया आपने, मतलब ये वेक्टर आपको पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये फोर्स दे दिया आपके पास इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, की ये फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसको मूव करवा रही है पॉइंट P1 से P2, मतलब कि एक पॉइंट P1 है उससे उसको मूव करवा रही है P2, तो ये जो आपके पास P1 और P2 क्या बन जाएगा, ये वेक्टर बन जाएगा। ये आपके पास बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है जो आपके पास आफ्टर जो फोर्स आप लगा रहे हैं, तो उसका जो डिस्टेंस तय कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, वो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये P1 और P2 वेक्टर है। तो ये हम P1 P2 वेक्टर फाइंड करेंगे। आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो P1 P2 है। P2 के कोऑर्डिनेट से P1 के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे तो P1 P2 आ जाएगा आपके पास। तो ये देखें, ये आपके पास है 2 - 3 और साथ में I आ गया, ये आ जाएगा 4 - 1, साथ में J आ गया और 6 + 2 आ जाएगा, तो आपके पास K आ जाएगा। तो ये आपके पास वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट का ये आ गया, जो आपने फासला तय किया उस ऑब्जेक्ट ने जब आपने उसको फोर्स अप्लाइड की है, कांस्टेंट फोर्स, ये फोर्स है आपके पास, दोनों फोर्स का वेक्टर भी है और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी। तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है, F डॉट डी, तो आपने F वेक्टर लिखा और यहाँ पे डी डॉट जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर वो लिखा, और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो x कंपोनेंट होता है वो x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, तो 4 × -1 आपके पास -4 आ गया, और 3 × 3 तो +9 आ गया आपके पास, और 5 × 8 40 आ गया। तो जब इनको सॉल्व किया आपने, और बाकी आई डॉट आई आपको पता है 1 है, जे डॉट जे 1 है, के डॉट के 1, इसलिए सारे वेक्टर्स के कंपोनेंट्स खत्म हो गए आपके पास, जो वेक्टर यूनिट वेक्टर सारे एलिमिनेट हो गए। तो ये बन गया आपके पास 49 - 4 45, और फोर्स के यूनिट्स आपको पता है वो न्यूटन होते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि सॉरी, वर्क डन जो आपके पास है वो आपके पास क्या है, ये न्यूटन मीटर आपके पास आंसर आ गया। फोर्स के यूनिट्स जो है न्यूटन है, और जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो न्यूटन मीटर। तो ये आपके पास जो है वर्क डन आ गया, जो कि कांस्टेंट फोर्स जब आपने अप्लाई की एक बॉडी को मूव करने से, तो वहां से आप इन टर्म्स ऑफ आपने जो है डिस्प्लेसमेंट उन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करके हासिल किया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस। अब यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। दिस इज फोर्स 1 4i + j - 3k, और दिस इज फोर्स जो आपके पास 2 है 3i - j + k, और इस डिस्प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी, और जो पार्टिकल जिस पे ये फोर्सेस लग रही हैं उसको डिस्प्लेस किया है ए से बी तक, दोनों के आपके पास ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, यहाँ से ए से उसको बी तक उसने बेसिकली क्या किया है, मूव किया। तो आपके पास दो फोर्सेस लग रहे हैं इस पार्टिकल के ऊपर, और दोनों कांस्टेंट फोर्सेस हैं, वो चेंज नहीं हो रही, उसने इसको डिस्प्लेस किया यहाँ से यहाँ तक। तो ये बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट है डी आपके पास, तो आप ये फाइंड करेंगे फर्स्ट। तो हमने क्या किया, ये डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर आपने फाइंड किया, तो आपको पता है ए बी के बी में से आप ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, 5 - 1 7 i 4 - 2 आपके पास j, और i 1 - 3 आपके पास -2k। तो ये वेक्टर आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है आपके पास ए बी वेक्टर आ गया। और अब जो फोर्सेस हैं, बेसिकली देयर आर टू फोर्सेस है, ये आपके पास F1 है, ये F2 है। तो जो आपके पास जो नेट फोर्स होगी वो इन दोनों को बेसिकली प्लस करने से आएगी, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ दीज टू कांस्टेंट फोर्सेस F1 और F2। तो इन दोनों फोर्सेस को आपने ऐड करना है, तो I कंपोनेंट I में ऐड, 4i + 3i + 7i आपके पास आ गया, दिस इज योर 7i। और आप जब j में प्लस j और माइनस j, दे विल बी कैंसल आउट, और -3 और -k दिस विल बिकम -4। तो ये आपके पास 7i - 4k आपके पास नेट फोर्स है, जो कि बेसिकली दोनों फोर्सेस को ऐड करने से आपको हासिल हुई। अब ये नेट फोर्स आप लेंगे और साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस डिस्टेंस के साथ जो आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो आपने ये फोर्स यहाँ लिखी जो नेट फोर्स थी, और डिस्प्लेसमेंट आपने जो फाइंड किया था ये यहाँ पे लिखा। इनका डॉट प्रोडक्ट है आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई, 7 4 से 28 आपके पास आ गया। अब जे कंपोनेंट है नहीं, तो जे कंपोनेंट आपका वैसे 0 हो गया, तो 0 × 2 0, एंड -4 × -2 +8, 28 + 8, तो आपके पास ये 36 जो है आपके पास न्यूटन मीटर, ये आपके पास वर्क डन आ गया, जो आपने फाइंड किया है बाय यूजिंग दिस। आपने नेट फोर्स फाइंड की पहले इन दोनों फोर्सेस को ऐड करके, और आपने ए बी जो है उनके जरिए आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, जो कि उस पार्टिकल ने ए से बी तक जो है मूव करके जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास था वो आपने फाइंड किया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में भी बेटा इसी तरह है कि पार्टिकल इज डिस्प्लेस, आपका एक पार्टिकल है वो आपके पास पॉइंट बी से ए से पॉइंट बी की तरफ गया, वो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ने मूव किया अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस
अब यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं बेटा, दिस वन, फोर्स 2 एंड फोर्स 3। तो हमने शो करना है कि जो वर्क डन है वो इसका 102 यूनिट्स है, ठीक है, मतलब कि जो इसका आंसर आता है जो वर्क डन का वो 102 आंसर आता है। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली पहले हम ए बी से जो आपके पास पॉइंट्स गिवन है यहाँ से हम इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि ए बी से हम क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है ए बी हमने फाइंड करना, तो बी के कोऑर्डिनेट में से आप ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे। तो 6 माइनस 5 आपके पास 1 आई आ गया, 2 प्लस 5 7j आ गया आपके पास, और -2 और -2 और +7 तो आपके पास 5k आ गया। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो आपके पास ए से बी तक उसने डिस्टेंस तय किया, वो आपके पास ये चीज़ है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। अब आपके पास 3 आपके पास फोर्सेज हैं जो कि कांस्टेंट फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, दिस वन force 1, this is force 2, force 3। तो net force will be the addition of all 3 forces। तो force 1 आपके पास ये है, force 2 ये है, force 3 जो है जो थर्ड फोर्स है ये है। तो नेट फोर्स विल बी द F and it is equal to the F1, F2 और F3, तीनों फोर्सेस को आपको ऐड करेंगे। सो व्हेन यू ऐड दीज 3 फोर्सेस तो आप देख सक रहे हैं, तो ये 10i और प्लस 14i और माइनस तो 12i आपके पास आ गया। दिस इज योर फोर्स का जो कंपोनेंट है वो आपके पास क्या है, दिस इज 12i जो आपके पास i कंपोनेंट है। j कंपोनेंट देखें बेटा, ये आपके पास है, दिस इज -j प्लस, तो आपके पास +4 +1 +5j, तो आपके पास ये +5j आ गया। k कंपोनेंट्स को ऐड करें, 11 + 9 20 20 -9 11, तो 11k आपके पास ये आपके पास नेट फोर्स आ गई, जो कि 3 जो फोर्सेज हैं उन तीनों को आपने कंबाइन करके नेट फोर्स बनाई है। वर्क डन क्या है, F डॉट डी, दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट लें, ये फोर्स नेट फोर्स है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। 12 इंटू 1 12 आ गया, +5 इंटू 7 35 आ गया, +11 इंटू 5 आपके पास 55। तो तीनों को ऐड किया तो आपके पास 102 यूनिट्स आ गया। और वो यही हमने प्रूव करना था कि जो वर्क डन है बेसिकली जो इस पे जो पार्टिकल पे अप्लाई हो रहा है, वो जो फोर्सेस लग रही हैं उसके थ्रू जो वर्क डन हो रहा है वो 102 यूनिट्स है। तो आपने ये जो है फाइंड किया वर्क डन, उसका आंसर 102 आ रहा है, तो यहाँ से वेरीफाइड हो गया। तो ये बेसिकली बेटा हमारे पास कुछ डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस थी, या आप कह सकते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो आपके पास फिजिक्स के अंदर या इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर या डिफरेंट फील्ड्स के अंदर आप यूज़ होते हैं, तो उसको कैसे अप्लाई होते हैं, तो ये हमने यहाँ पे उसकी एप्लीकेशंस देखी है। तो आपका प्रैक्टिस वर्क बेटा इसी से रिलेटेड है कि एग्जाम्पल नंबर आपकी बुक के अंदर 2, 3 एंड 4 है, उसे आपने देखना है, उसे आपने खुद करना है, कोशिश करनी है, ट्राई करनी है उसको करने की। तो अब हम देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक वीडियो देखते हैं जिसमें आपको कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस की गई हैं। तो What if you see vectors everywhere? Well, maybe not everywhere. What if a picture of 3 kittens reminds you of a special 3-vector product? One such product is called the triple scalar product. In this lesson, we'll explore this unique combination of vectors. Quantities like mass and volume are scalars. A scalar has magnitude but no direction. A vector like force or velocity has both magnitude and direction. Imagine multiplying 3 vectors together and getting a scalar. This happens in the triple scalar product. Those kittens in the photo are organized as 2 of one kind and 1 of another. This is similar to the triple scalar product, where we take a cross product of 2 of the 3 vectors. This cross product gives us a new vector. Then we take the dot product of this new vector with the remaining vector. The overall result is a scalar. This sounds more complicated than it is. We'll take it step by step. It's certainly easier than herding kittens. When we take the cross product of 2 vectors, a and b, we get a new vector. To show this in a general way, let's say the vector a is written with components a sub x, a sub y, and a sub z. Similarly, the vector b is written with components b sub x, b sub y, and a sub z. The unit vectors I, j, and k complete the description, as you can see. A convenient way to calculate the cross product is to build a matrix using the components of the vectors. Then, the determinant of the matrix gives us the cross product. Here's how we build a matrix. The first row of the matrix has the unit vectors. The second row contains the components of the vector A. The components of the vector B are the third row. Here's the cross product of vector A and vector B appearing on your screen right now.
When we expand this determinant, the resulting cross product is this new vector that's appearing on your screen. Now, we take the dot product of the vector c. In a dot product, the I components of each vector are multiplied together. In our general case, the I component of the c vector is c sub x, and the I component of the cross product is a sub y b sub z minus a sub z b sub y. This gives us the scalar d sub x times a sub y b sub z minus a sub z b sub y. Same thing with the j components and the k component. Adding these three scalar products together gives us a scalar. Now we have the triple scalar product. It looks like the formula appearing on your screen right now. A fascinating observation can be made. The result we have is the same as the determinant of the matrix, whose rows are the components of the vectors c, a, and b. Some numbers will help clarify this last idea. For example, if the vectors are the ones appearing on your screen right now, this is all about scalar triple product, and after today's lecture आप ये जो questions हैं इनके answers easily दे पाएंगे कि what is the condition for coplanarity of three vectors, and also you can prove that I dot j cross k and j dot k cross I or k dot I cross j is equal to 1, and I dot k cross j or j dot I cross k or k dot j cross I is equal to -1. So this is all about today's lecture बेटा. इसमें हमने देखा कि वेक्टर्स की जो एप्लीकेशंस है, पर्टिकुलरली हमने वर्क डन जो है उसे कैलकुलेट करना सीखा कि आपके पास कांस्टेंट फोर्स है, बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट आप उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उन दो वेक्टर्स का, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वर्क डन आता है. तो ये आपके पास मजीद जो हम एप्लीकेशन है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो उस वक्त अपना ख्याल रखें. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.